Hello and a very warm welcome to Rajya Sabha TV. It's 3 p.m. and the picture looks quite clear at the moment. While Jharkhand looks in a position where the BJP could form a government, Jammu and Kashmir stares at a hung assembly. We at Rajya Sabha TV are getting you continuous trends since morning. I'm Tina Jha. Let's take a look at the headlines this hour. A hung assembly likely in Jammu and Kashmir. PDP emerges as the single largest party. BJP at close second place. Big jolt for incumbent National Conference. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah loses from Sonawar but wins from Birwa. PDP's Chief Ministerial prospect Mufti Muhammad Saeed wins from Anantnag. In Jharkhand, BJP and its ally AJSU close in on the majority mark. Promise of stability and development works in their favour. Jharkhand Mukti Morcha far behind in the race as of now. Chief Minister Hemant Soren trails in erstwhile stronghold Dumka but wins from Barhair. Former Chief Minister Madhu Kora loses while Babulal Marandi trails. And yet another bad outing for the Congress in both states. Banks on PDP to form an alliance in Jammu and Kashmir. It has turned out to be a fascinating contest in Jammu and Kashmir. PDP has emerged as the single largest party in the state, with BJP a close second against expectations. Facing anti-incumbency, National Conference has lost quite a bit of ground. Chief Minister Omar Abdullah has lost from Sonawar but won from the Birwa seat, while PDP's CM candidate Mufti Muhammad Saeed has retained his party's bastion in Anantnag. The BJP and the PDP took early leads as soon as counting of votes started in Jammu and Kashmir. However, as the day unfolded, the situation did not look as simple for the BJP. By midday, the state seemed to be headed for a hung assembly, with the PDP emerging as the single largest party. BJP has come a close second despite an ambitious target of 44 plus seats it projected during the poll campaigns. Congress and the National Conference settled for the third and fourth place. देखिए, अब हम एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। ये वोट जो है वोट कांग्रेस और एनसी के खिलाफ है, तो बीजेपी के साथ हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, एफिनिटी नहीं है। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए आगे, ये मेरे ख्याल में हम पार्टी में फैसला करेंगे कि दोनों स्थानों पर झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में बन रही है। Facing anti-incumbency, Chief Minister Omar Abdullah failed to make a mark from Sonawar seat. He lost contesting for the first time from this constituency. However, PDP's Chief Ministerial prospect Mufti Muhammad Saeed won from Anantnag, a seat held by his party. One of BJP's best bets in the valley, Hina Bhatt, lost from Amira Kadal constituency. A hung assembly has raised speculations over possible post-poll alliances. PDP will have the luxury to choose from either the BJP or the Congress to garner enough numbers to form the next government in the state. However, the party chose to keep its cards close to its chest. BJP, on the other hand, remains hopeful to form its first government in the state. But the assembly elections in Jammu and Kashmir as well as Jharkhand have proved to be a lost cause for Congress yet again. The party could hope for a tie-up with PDP to stay in power in Jammu and Kashmir. With inputs from Vishal Daya and Akhilesh Suman, Bureau Report, Rajya Sabha TV. The Congress, meanwhile, has suffered a major rout in Jammu and Kashmir, and the only way it can retain power is by an alliance with the PDP. Congress leader Ghulam Nabi Azad has said the party would be willing to support the PDP, which has emerged as the single largest party in Jammu and Kashmir. PDP and BJP has been opposing each other tooth and nail in this election. Now the call has to be taken by the PDP leadership whether they would like to go with the communal forces to form the government or secular forces. So here ultimately it is Mufti Saab and Mahbooba ji who will have to take the decision. So I can't Would you be appealing? Would you be appealing to the PDP? No, I can't. This is the purpose. The PDP has a very mature leadership. They know what is good and what is bad for them and for their party. I'm not going to dictate or tell anything to the PDP leadership what they are supposed to do.
Mufti Saab is a very seasoned leader. The call has to be ultimately taken by Mufti Saab in the interest of his own party and in the interest of सेकुलरिज्म ऑफ द स्टेट. कांग्रेस तो ओपन है समर्थन के लिए. देखो, कांग्रेस हमेशा किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी को छोड़कर. Well, let's now go across to my colleague Vishal Daya, who's joining me live from Srinagar. Vishal, though the performance of the Congress party hasn't been very good in Kashmir, the party is indicating that it might join hands with the PDP. So the party can't be written off as of now. Well, yes, definitely not. And as far as the performance goes, it has not been very bad, very good, but it has also not been very bad for the Congress, given the fact that there has been a upsurge for both BJP and PDP. Congress still has maintained to remain in double digits. Right. One very interesting thing out here is that in this post-poll scenario, wherein it is clear there is going to be a hung assembly, Congress has taken the first initiative. Congress has taken the initiative and tossed the ball in PDP's court by clearly indicating that they're open to go ahead and support the PDP's government if they want to go ahead and form a coalition government with the Congress. And this is not the first time that PDP Congress will be forming a government. In 2002, even both of them were alliance partners in the government out here. So obviously, both of them will not be new to that particular game of coalition, political game. But what remains to be seen here is that what kind of stand is the PDP going to take? And right. Since morning we've been trying to go ahead and elicit some sort of final response from the PDP leadership, but that is something which is not forthcoming. The leadership of the PDP has not spoken. Their spokesperson Naeem Akhtar though had a word with us, and he clearly indicated that this is going to be a very difficult call for the PDP leadership, whether to go for Congress or to go for BJP. That was when the trends were still coming in around 10 a.m. Most probably at that point in time, the PDP leadership were hoping that they will easily cross the mark of 35, and then there might be other scenarios to explore as well. But this time around, right now, if you look at the position and the tally, it is quite clear that one viable alternative in the state out here is that PDP and Congress come together. Other viable alternative is that the PDP and BJP come together, and the third alternative is that the BJP and National Conference comes together. But then right. The third one is already ruled out by both sides. The second one, neither PDP nor BJP is making overtures towards each other. But as far as the first alternative goes, that's the PDP and Congress alliance forming a government. The Congress has already made the first move, have tossed the ball in the PDP's court. It is for the PDP to take a final call, and we are awaiting a word from the PDP's top leadership, who is right now in Srinagar. Mehbooba Mufti is there in Srinagar. We are expecting Mufti Mohammad Saeed also to come by late evening, and we are hoping that there will be a final call from the PDP leadership tonight only. Right, Vishal. So while the PDP has many alternatives and the PDP has emerged as the single largest party, another interesting thing that the trends show is that despite despite the rigorous campaigning by Prime Minister Narendra Modi, despite going all out to the youth in Jammu and Kashmir, the party seems to have drawn a blank in Kashmir and Leh. How do you read that development? Well, Leh obviously would be a disappointment for the BJP because they were banking their hopes on garnering more numbers from Leh. Yes, of course, the BJP has a strong presence in the Jammu region, and everyone was hoping that in Jammu BJP would have a strong number, but that strong number had to be further boosted by their presence in Leh and then in Kashmir as well. But they have drawn blank in both areas. Leh would definitely be a disappointment, and so of course would be Kashmir Valley, and specifically the Srinagar district, where they had a few of the candidates who were hoping that they would go ahead and ensure that the BJP wins their first seat in the valley out here. But then that is not fructified.
that is something which has dashed the BJP's hopes of achieving that mission 44, and that's why we see that picture emerging out here, wherein Right, it Vishal, is in a fact, hung assembly, and let's go BJP now across to the is the second largest Delhi party. So if BJP PDP headquarters. decides to form a government with Congress in alliance, then BJP will be the single opposition. Right. In fact, let's go across to the Delhi BJP headquarters where Party President Amit Shah has just entered the premises. It looks the party is already celebrating the victory in Jharkhand. Right, so let me go across to my colleague Vishal, who's joining us live from Srinagar. So while Vishal was indicating the PDP has many alternatives, we still have to wait and watch which way the party swings. Vishal, what do you think? You've spoken to so many leaders of the PDP. Do you think the party will go back to its former ally, the Congress, or do you think it's going to test new waters and swing in favor of the BJP? Well, therein lies the catch, because as far as PDP is concerned, it has been in alliance with the BJP. It has been in not alliance, rather it has had a good relations with the BJP. It has been in alliance with the Congress as well. Now, one very important factor out here is that Mufti Mohammad Saeed, the BJP's patron, has been, very quiet about this coalition game throughout the election campaign. Two, in the last few days, that's last 2 to 3 days, yesterday as well as today also, the top leadership of the BJP is, keeping its cool. It's keeping their cards very close to their chest. It seems they are, weighing all the options, weighing the pros and cons of allying with either BJP or Congress. They've already been in alliance with the Congress earlier, as I was saying, and that doesn't seem to have gone very bad. Right. Congress would get more MLAs in that coalition, but this time around they have almost more than double the MLAs of what Congress has. So obviously they will have that extra hand in that alliance. So it seems there seems to be a lot of thinking and rethinking going on within the PDP camp, and there is definitely what our sources say. There is definitely rethinking going on within the PDP camp, and there is definitely what our sources say. There is definitely a camp within the PDP which believes that going with the BJP would further boost the party's chance to go ahead and govern the state more smoothly, because the BJP is in power at the center at this point in time, and that too with a clear majority. But then there is another camp within the party which believes that it would be difficult for them to go ahead and align with the BJP, which is as of now both parties stands ideologically poles apart. So obviously these are very important factors which will have to be kept in mind by the top leadership of the BJP of the PDP, and that's why even after more than 2 hours of that offer coming in from the Congress, there is no clear indication from the PDP whether they have accepted that particular offer yet or not. And everybody, including the Congress, is right now in a wait-and-watch game, because it is the PDP which has to go ahead and take the final call as to which way they want to go. They're the single largest party in this assembly, and if they decides to go along with the Congress, then BJP need not be that disappointed, because in that particular situation, BJP will emerge as the opposition party in the state of Jammu and Kashmir. A sort of an achievement for them, given the fact that they were on the margins for quite a while, and in last assembly elections their figures were very less compared to what they have got in these assembly elections. Right. Vishal, what do you think about the BJP? Do you think the party is ready to take up the position of the opposition party in case the PDP goes along with the Congress to form the government in Jammu and Kashmir? Well, in case the PDP and Congress forms a coalition government in the state of Jammu and Kashmir, then obviously with the numbers tally in the state assembly as of now, the BJP will emerge as the single largest party on the opposition benches, and will definitely be the main opposition party in the state of Jammu and Kashmir. So that's a foregone conclusion if at all PDP and Congress decides to align together. But what is more important for the PDP and Congress right now,
apart from BJP is the very fact that even if both their numbers are combined, they are yet to reach that magic figure of 44. They are, they're still short of that figure by 1 or 2 seats, given the fact that the leads are still coming in and the numbers are going up and down by 1 seat yet. So we will have to figure out, both sides rather will have to figure out if they decide to go ahead and form a coalition together, a government together, as to where will those 1 or 2 additional numbers come from, if at all they don't manage to reach the mark of 44. Right, Vishal, do stay with us. We'll come back to you in just a bit and get more developments from the state of Jammu and Kashmir. Meanwhile, our correspondent Smriti Rastogi also spoke to Congress spokesperson Ajay Kumar in Delhi. We'll come back and listen to what Ajay Kumar had to say after this very short break. झारखंड और जम्मू कश्मीर में होगी वोटों की गिनती। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों की सटीक जानकारी और खास मेहमानों के साथ रांची से मैं श्याम सुंदर आपके साथ रहूंगा दिन भर। श्रीनगर से हम पहुंचाएंगे आप तक चुनावी नतीजों की पल पल की खबर। श्रीनगर से विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर चुनाव में किसकी होगी जीत, कौन खाएगा मात, मैं अखिलेश सुमन आपको बताऊंगा पल पल के हालात जम्मू से। आज दिन भर लगातार लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। क्रिसमस के आते ही गीत संगीत और मधुर ध्वनियों का एक नया संसार शुरू हो जाता है। दिल्ली के गिरजाघर 115 साल पुराना पाइप ऑर्गन। ये एक पाइप ऑर्गन है, इसके 3 मैनुअल्स हैं। एक है क्वायर ऑर्गन, एक है ग्रेट ऑर्गन, स्वेल ऑर्गन और पेडल ऑर्गन। एक पादरी का संगीत प्रेम। हम दोनों में सीख भी रहा था, जान थी, रियाज भी था। तो आई यूज्ड टू अकम्पनी पंडित हुसन लाल जी अलॉन्ग विद महेंद्रजीत सिंह। क्रिश्चियनिटी में संगीत। क्रिसमस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सदाकत का संगीत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Welcome back. You're watching Rajya Sabha TV. Our correspondent Smriti Rastogi spoke to Congress spokesperson Ajay Kumar, like we told you before heading into a break. Let's listen into what Ajay Kumar had to say about his party's route. Congress had better equations with JMM this time around, scenario would have been entirely different. Then the non-BJP votes got divided. And if the non-BJP votes were, and like-minded people on the same side, because BJP formed the alliance with ASU, and like-minded people with our alliance, we could have probably formed the government and kept BJP around 20-25 seats. What other reasons would you give for the downfall or for the non-performance of the party? One of the issues is I definitely believe that on seat adjustment, and did we find... Let's now go across to the BJP headquarters in Delhi, where party president Amit Shah is addressing a press conference. थोड़ा इधर आ जाइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विनय सहस्रबुद्धे जी, शहनवाज हुसैन जी। झारखंड की अपार जीत पर सबसे पहले वहां के प्रभारी सह प्रभारी भूपेंद्र यादव जी माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अरे उल्टा मत करो भाई, लाओ। चलो अध्यक्ष जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं भूपेंद्र जी का, और अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का एक और लाओ। जम्मू कश्मीर की अपार सफलता पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी अभिनंदन करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। भाई आओ त्रिवेंद्र। त्रिवेंद्र जी हमारे प्रभारी रहे हैं झारखंड के। बहुत बहुत बधाई हो भाई। और हम सभी मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग हम मिलकर माननीय अध्यक्ष जी को मिठाई खिलाएंगे और अभिनंदन करेंगे सभी लोग मिलकर। माननीय अमित भाई शाह जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का रथ है हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं।
यार भूपेंद्र जी। भाई त्रिवेंद्र आओ। So as you can see, Party President Amit Shah felicitating other leaders, celebrating their win in Jharkhand. The BJP looks, as the trends show, the latest trends suggest that the BJP might be in a position to form a government in Jharkhand. In the last 14 years, the state of Jharkhand has seen almost 3 president rules and hung assemblies, no stable government in the state of Jharkhand in the last 14 years. So a big challenge for the BJP, which might be forming a first stable government in Jharkhand. 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित चुनावी सफलता का साल है। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में हम एक अच्छी सरकार देंगे। जो हमारा वादा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है, मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वादे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरे उतरेंगे। इस मौके पर मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने दोनों राज्यों में हमारे कैंपेन को लीड भी किया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलताएं मिली हैं। ये 2014 के साल में ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत के साथ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद जितने भी चुनाव आए, हर चुनाव में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के शिखरों को हासिल किया है। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। हरियाणा में हम 4 सीट से 50 तक पहुंचे और हरियाणा में भी शुद्ध रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी स्थिति में हमने काफी सुधार किया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये चारों राज्यों में कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या तो चौथे नंबर पर चली गई है। सही मानों में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हमारा सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी एक कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान बहुत आगे तक जाए। झारखंड का चुनाव जब घोषित हुआ तब कांग्रेस और सो कॉल्ड जनता परिवार, इन्होंने गठबंधन कर
एक चैलेंज खड़ा करने का प्रयास किया था कि बिहार की तर्ज पर वहां पर भी कांग्रेस, जनता दल और आरजेडी तीनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। मगर झारखंड की जनता ने ये तीनों के सम्मिलित करीब करीब 7 सीटें दी है। मैं मानता हूं कि वो 2 अंकों को भी नहीं छू पाएंगे। और जिस गठबंधन के आधार पर बिहार में एक बड़ा चैलेंज खड़ा करने का जनता परिवार की जो कल्पना थी, उसको झारखंड की जनता ने तहस नहस कर दिया है। इनके नतीजों में हेमंत सोरेन खुद एक सीट पर पीछे हैं, बाबूलाल मरांडी जी दोनों सीटों पर हारे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, आरजेडी की प्रमुख नेता अन्नपूर्णा देवी भी चुनाव हारी है। और झारखंड में हमने हमारी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। 2009 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ पास 18 सीटें थी, उसको बढ़ाकर हम 41 पर पहुंचे हैं। कुछ नतीजे भी घोषित होना बाकी है, मगर मैं मानता हूं कि अब काफी बढ़त बन चुकी है। तो 23 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और वोट शेयर हमारा जो 24% था वो बढ़कर 31.3%, मतलब करीब करीब काफी बड़ी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी, आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है, या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। और सबसे बड़ी आनंद की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाली पार्टी बनी है। परसेंटेज वाइज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भारतीय जनता पार्टी 23.4% वोट पाई है और उसके बाद में पीडीपी 22% के आसपास वोट पाई है। मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दोनों व्यक्त किया है। और 6 महीने से मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसका जो कामकाज है, उसका जो कार्य है, उस पर एक तरह से ठप्पा लगाने का काम ये दोनों राज्यों की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो लोग विकास के एजेंडे को बदलना चाहते हैं उनके लिए सबक है। सरकार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, जनता के मैंडेट का आदर करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसको रचनात्मक कामों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सहयोग देना चाहिए। मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से दोनों राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बड़े दिल से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बगैर ये जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव था। ये जीत का हकदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा और प्रेम है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। विकास भदौरिया जी पीछे।
जनता ने विकास के एजेंडे को पसंद किया है और जो लोग देश के मुख्य प्रवाह को विकास के एजेंडे से डाइवर्ट करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक सबक है। और जहां तक मिशन 44 का सवाल है, आप थोड़ी राह देखिए, कुछ अच्छा होगा। सुजीत ठाकुर। हाँ जी, आपकी अपेक्षा की मुझे मालूम नहीं है, मेरे अपेक्षा के अनुरूप फैसले हैं। रीमा पराशर। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। अखिलेश राधिका जी, इतनी सरलता से मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। अरे भाई, मेरी पार्टी अंदर विचार करेगी, मैं आपको ऐसे कैसे बता सकता हूँ। आपने अभी कहा कि ये जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि लोगों ने डेवलपमेंट का एजेंडा को प्रेफरेंस दिया है। तो आप मतलब मोदी सरकार की जो डेवलपमेंट की एजेंडा है, my question is that do you think that the recent debate on religious conversion started by taken forward by you and Mohan Thakur recently is part of that development agenda? नहीं, हमने कोई बहस शुरू नहीं की है। अखिलेश जी, फिर ऐश्वर्या, फिर गार्गी। अब मैंने कहा सारे विकल्प खुले हैं, अंदाज आप खुद लोग लगा दीजिए। काफी चीजें तो आपको भी मालूम होती है भाई। मिस्टर कपूर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े उसके पक्ष में है। हम जरूर चाहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बने। देखिए, ये गलत जगह पे आप सवाल पूछ रहे हैं। ना हमने संसद ठप की है, ना हमारा संसद ठप करने का कोई इरादा है। और जहां तक डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी बिल है उसकी चिंता आप भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दीजिए। वो समय पर कानून बनेगा और डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा। गार्गी, फिर मारिया। वो पार्टियों के साथ बात करेंगे ना हम। आपको फोन किया है वो पार्टियों ने। अरे छोड़िए भाई। देखिए, घुमा फिराकर आप लोग एक ही बात पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। सारे ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं। सारे ऑप्शन का मतलब होता है सभी तरह के ऑप्शन हमारे लिए खुले हैं। रामनारायण श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव। कांग्रेस मुक्त तो हो ही गया जम्मू कश्मीर भैया। बाकी कौन आएगा वो छोड़ो, आप कांग्रेस से तो मुक्त हो ही गया है। उषा जी, अटैक नहीं किया, मैंने स्थिति बताई है।
देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में तो परिवार जैसा कुछ नहीं है, वहां नेताजी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। और बिहार का चुनाव आने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। मजूमदार जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। थैंक यू। अनामिका, देखिए, ये हकारात्मक नतीजा है और हकारात्मक जनादेश है। 6 महीने की मोदी जी की सरकार जो चली है देश में, उसके प्रति लोगों ने आज भी आशा भी बरकरार है और विश्वास भी बढ़ा है। इस प्रकार का एक हकारात्मक जनादेश है। तिवारी जी, रवीश तिवारी, इंडिया टुडे। नहीं, अभी कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें चर्चा होगी। हाँ, आपने सुना नहीं, आगे मैंने कहा भैया निर्णय नहीं हुआ है, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आनंद जी, चलिए, उमर अब्दुल्ला सब कुछ आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है, और जो बताते हैं वो सही होता है, वो भी नहीं है। नहीं, हमारे लिए दुखद घटना है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की हार हुई है, मगर अर्जुन मुंडा हमारे प्रमुख नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और उनकी शक्तियों का उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी में है ही। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपको बधाई देते। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी के प्रदर्शन के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। साथ ही संकेत दिया है कि बीजेपी ने अभी अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां त्रिशंकु विधानसभा बनती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर किसी पार्टी को जम्मू कश्मीर में बहुमत नहीं मिला है और इसे लेकर अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी के सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं जाहिर की है कि बीजेपी अपनी तरफ से पहल करेगी जम्मू कश्मीर में या नहीं। तमाम जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं उस पर लगातार राज्यसभा टीवी आपको अपडेट देता जा रहा है। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, और आइए एक नजर डाल लेते हैं कि फिलहाल क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा, पीटीपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान। जम्मू कश्मीर में संभावित गठबंधन की कोशिशें तेज, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सभी विकल्प खुले, कांग्रेस का पीडीपी को समर्थन से इनकार नहीं। झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनना तय, जेएमएम दूसरे स्थान पर, कांग्रेस गठबंधन को नुकसान। झारखंड में मधु कोड़ा, सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी हारे, अर्जुन मुंडा भी पीछे, बरहट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत। तो झारखंड में तस्वीर साफ लग रही है, यहां बीजेपी की सरकार बनना तय दिखाई दे रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं। जो अब तक की तस्वीर है, बीजेपी मुख्यालय में हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह इस समय मौजूद है। अरविंद जी, अभी हमने अमित शाह को सुना, उन्होंने कहा बीजेपी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। हालांकि अपनी तरफ से पहल की बात को लगातार बीजेपी नकारती रही है कि वो किसी से समर्थन मांगने या देने की पहल नहीं करेगी। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या स्टैंड है बीजेपी का फिलहाल? देखिए प्रीति, जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी मुख्यालय में मैं हूँ, यहाँ काफ़ी जश्न का माहौल है और बीजेपी का ये मानना है कि
जो जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं वो कुल मिलाकर के उसके लिए मुफीद हैं और पहली बार उसको इतना अधिक समर्थन मिला है। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि जो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें बागी आगे की रणनीति तय होगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो वहां खुद जो है गुलाम नबी आजाद जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो पीडीपी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर के आगे 2-1 दिन ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो भविष्य की तस्वीर है वो किस तरफ जाती है। इस तरह ये काफी दिलचस्प होगा। झारखंड बिल्कुल क्लियर है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का यह मानना है कि जो इन दोनों राज्यों में जो पिछला जो जनादेश था और जो हालात थे उसके विपरीत जो परिणाम आए हैं वो नरेंद्र मोदी के पिछले 6 महीने से अधिक की जो सरकार की परफॉर्मेंस है उसका एक बेहतर नतीजा है। लेकिन अगर आप इसको सर्वे और जो इस तरह के जो एग्जिट पोल वगैरह आए थे उसकी तुलना में देखेंगे तो वो उसमें जरूर जो है कुछ हद तक झटका लगा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की आपदा के बाद नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत की थी जम्मू कश्मीर में और घाटी में बिल्कुल उसको जो है वो समर्थन नहीं मिला जिसकी परिकल्पना की जा रही थी। जी प्रीति। जी अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रांची से श्याम सुंदर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, लगातार आपसे बात हो रही है क्योंकि अब जाहिर तौर पर सवाल मुख्यमंत्री को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह की तस्वीर झारखंड में उभरती नजर आ रही है, जेएमएम को जिस तरह का समर्थन मिला है, माना जाए जो लोकतंत्र के लिए अच्छा भी, एक मजबूत विपक्ष भी झारखंड को मिल गया है। जाहिर है, आप बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरह का रिजल्ट यहाँ पर आया है उससे ये बात भी साबित हुई है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसका सफाया हो गया है या उसके वजूद पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। दूसरी एक और बात जो इससे साबित होती है कि हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी को लीडरशिप देने में कामयाब रहे हैं। शिबू सोरेन के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लीडरशिप की जिम्मेदारी ली थी और जिस तरह से बीजेपी का सामना उन्होंने किया, हमें यह ध्यान रखना होगा। लगातार हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान थी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की। लोकसभा में जबरदस्त सफलता के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह की सफलता बीजेपी को मिली थी उसी तरह की अपेक्षा झारखंड में की जा रही थी। और उस परिस्थिति में जबकि कोई एक बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ नहीं बन पाया था, विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ था, जेएमएम और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, वैसे में हेमंत सोरेन अगर 18 सीटें भी रिटेन करने में कामयाब रहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। हालांकि यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं या जो स्थानीय पत्रकार हैं जो जमीन पर कवरेज करते रहते उनको एग्जिट पोल पर लगातार कल से हमारी जब बात हो रही थी तो उनको शंका जरूर थी। लेकिन अब ये साफ हो गया कि सरकार बनाने में बीजेपी जरूर कामयाब रहेगी, लेकिन जैसी अपेक्षा थी, जिस तरह का बहुमत उन्होंने उम्मीद किया था, वैसा बहुमत नहीं मिला है। जी अरविंद जी, हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि अरविंद जी आप कह रहे थे कि जितनी उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी थी उस हिसाब से नतीजे उसे नहीं मिले। जरूर हम पटाखे जलते दिखाई दे रहे हैं, मिठाई बटती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इसमें मिठास कम नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे साथी श्याम ने कहा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रीति की, इन दोनों ही प्रांतों में जो एक बहुत ही मजबूत और सशक्त विपक्ष उभर के आया है और ये अपने आप में जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है जी। और अगर आप पिछले कुछ चुनाव को देखेंगे खासतौर पर महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है कि एक मजबूत विपक्ष है और बिल्कुल एक तरफा नहीं कह सकते। और जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसा श्याम ने कहा अभी कि जो जैसे वहाँ जेएमएम है और उसी तरीके से यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जो है पीडीपी एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में उभर के आई है सामने। और ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों जो है, तो कुल मिलाकर के ये जो पार्टियां हैं ये वाइप आउट नहीं हो गई हैं। कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जो उम्मीद थी उस तरह का कोई नतीजा जो है वो नहीं आया है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि ये मिठास शायद पहले से कम है। जी श्याम, मजबूत विपक्ष झारखंड को जरूर मिला, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मुलायम, लालू, नीतीश एक मंच पर साथ आएंगे? महाधरना हमने देखा, लेकिन क्या इन नतीजों के बाद एक बार फिर से विचार करने की संभावना बनेगी क्या इस पर?
देखिए, अब जो चुनाव परिणाम यहाँ पर आए हैं, अगर आप देखें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, जेडीयू, इन सबको अगर देखें, अगर ये एक साथ हुए होते तो हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ भी विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन ये इन चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि जैसे पहले माना जा रहा था चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी की एक लहर है, बीजेपी के फेवर में एक तरफा माहौल है, वैसा माहौल झारखंड में नजर नहीं है। जाहिर है कि बिहार के चुनाव होने वाले हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके बाद अगर थोड़ा दूर जाएं तो पश्चिम बंगाल बड़े टारगेट हैं बीजेपी के लिए। लेकिन झारखंड के चुनाव परिणाम जिस तरह के आए हैं, कश्मीर में जो हुआ है वो अपेक्षित लाइन पर माना जा सकता है, लेकिन झारखंड के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जाहिर है कि अगर जनता परिवार एक होता है और वो बिहार में मिलकर चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति जो है उसको नए सिरे से उस पर विचार करना पड़ेगा, नए सिरे से उनको बैठकर सोचना पड़ेगा कि किस, अगर ये सारे लोग एक साथ आते हैं और लोकसभा पिछले उपचुनावों में हमने देखा बिहार में, तो जाहिर है झारखंड के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जनता परिवार अगर एक साथ आता है बिहार में तो रणनीति जो है बीजेपी की उसको नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी, कम से कम बिहार के लिए। जी अरविंद, आज अर्जुन मुंडा को लेकर अमित शाह ने बोला है कि वो एक अहम नेता हैं बीजेपी के लिए और वो बने रहेंगे। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। सीएम को लेकर क्या माना जाए? कल संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है, क्या इस बोर्ड में ही नाम तय हो सकता है या पर्यवेक्षक भेजने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी में जो कुछ नामों की जो चर्चाएं हैं पीती, उसमें उसके हिसाब से तो निश्चित तौर पर जो है ये कुछ जो नाम है उन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जो लगता है कि उसमें जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कल बैठक होने जा रही है उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे पक्षों को विचार करके, क्योंकि झारखंड में जो आदिवासी नेतृत्व है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है और उस बात को जरूर बीजेपी ध्यान में रखेगी। लेकिन जो आपने कहा, ये निश्चित तौर पर देखने को मिला है कि वो दोनों राज्यों में कई बड़े नेताओं की अप्रत्याशित हार हुई है। जी, ये तो कहिए कि जरूर है कि जो 2 सीटों से जीत गए, दो सीटों से जहां लड़े हैं वहां उनमें से एक सीट जीतने को मिल गई। लेकिन कुल मिलाकर के जनता ने जो कामकाजी लोग हैं, जो हैं उस तरह से जो जनता के सरोकारों से जुड़े लोग हैं, उनको जरूर समर्थन दिया है। और ये जो कल की जो मीटिंग हो रही है उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे पक्ष हैं जिनकी व्यापक समीक्षा की जाएगी। जी, शाम से समझते हैं। शाम, हरियाणा में हमने देखा जाट और गैर जाट नेता की बात थी, अब झारखंड में क्या आदिवासी गैर आदिवासी का मसला भी बड़ा होने वाला है मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल, ये सारे सवाल देखिए, कोई भी राजनीतिक दल और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, केंद्र में उनकी सरकार है, इसलिए झारखंड में जो भी वो फैसला लेंगे वो जानते हैं कि उसका न सिर्फ पड़ोसी राज्य बिहार बल्कि और दूसरे राज्यों में भी एक मैसेज जाता है। वो एक रीजनल पार्टी नहीं है। झारखंड में वो किस तरह का फैसला लेते हैं, ऊपर से कोई मुख्यमंत्री थोपा जाता है या फिर जो लोकप्रिय नेता है यहाँ का उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ये मायने रखता है। और उस तरह का 2/3 बहुमत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होगा और एक कार्डर बेस्ड पार्टी बीजेपी है, लेकिन जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है उसमें मुझे लगता है कि स्थानीय नेतृत्व का एक से होगा, जो स्थानीय नेता हैं उनकी बात सुनी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो झारखंड का हाल और तस्वीर हमने समझने की कोशिश की है। इसके बाद अगर हम रुक करें जम्मू कश्मीर का, तो उसे भी हम समझेंगे। यहां 87 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और इस बार विधानसभा के चुनाव में अभी किसी दल को सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं हुआ है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 30 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। वहीं बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें आई हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग से अपना चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने भी 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी को घाटी में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जम्मू क्षेत्र में उसे जनता का समर्थन हासिल हुआ है। इसकी बदौलत पार्टी ने पिछली बार से 2 गुने से ज्यादा सीटें हासिल की हैं।
एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फिर एक बार शायद आ रही है कि दिल्ली में एक सरकार है जो बहुत जिसके पास भरपूर एक मैंडेट है, और जम्मू कश्मीर में अगर मुफ्ती साहब को मैंडेट मिलता है तो एक एंगेजमेंट की बात होगी। इन चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखी जा सकती है। मतदाताओं ने जम्मू में बीजेपी पर तो घाटी में पीडीपी पर भरोसा जताया है। सरकार गठन पर पीडीपी और बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के साथ कौन आने के लिए तैयार है वो महत्वपूर्ण है। कौन बिना शर्त कोई समर्थन देना चाहते हैं उसके लिए इंतजार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उनकी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। कांग्रेस को पिछली बार 17 सीटें मिली थी और पार्टी को इस बार नुकसान होता दिख रहा है। पार्टी का कहना है कि राज्य की जनता ने बीजेपी की नीतियों को नकार दिया है। पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो किसी भी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसी के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती है। जो मोदी लहर ये बता रहे थे उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। निश्चित रूप से भारी कमी आई है मोदी लहर में और उसमें गिरावट आई है। जो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी कहीं से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि वो मिशन 44 चला रहे थे। राज्य में सरकार गठन के लिए 44 सीटों की जरूरत है। नतीजे आने के साथ साथ राज्य में सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान करेगी, पार्टी जनता के प्रति अपना दायित्व निभाएगी। हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बात की। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जो चुनावी नतीजे आए हैं किस तरीके से असर देखते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि जो जनता का जनादेश है वो तो सर माथे पर हो जाए, उसको सर नतमस्तक होकर के हमेशा सलाम करना होता है। अच्छा होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, दोनों जगह पे बनती, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे संकल्प के साथ, सुशासन के संकल्प के साथ, विकास के संकल्प के साथ लोगों के बीच में गई। बेहतर होता है कि पूर्ण बहुमत का जनादेश मिलता है, लेकिन जो भी जनादेश मिला है वो जनता की जनादेश हमें नतमस्तक होकर। झारखंड में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नंबर 1 बनाना है, तो आप किस तरीके से देखते हैं अब क्या क्या किया जाना बाकी है, क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश है वो जनादेश जो है वो जनता ने दिया है और हम उस जनादेश के आधार पर ही जनता की सेवा करने में सक्षम हो। जेडीयू नेता नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी जितना शोर मचा रही थी उतनी सीटें उसे नसीब नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलना चाहिए उस हिसाब से तो हमको कम दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद से कम ही उनको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है अब तक के रुझान के मुताबिक, चाहे वो झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी भले ही अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जम्मू क्षेत्र में उसने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। मैं ये समझता हूं कि आज मिशन 44 को तो एक धक्का पड़ा ही होगा, क्योंकि जम्मू जिला में 1996 के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना खाता खोला है, और वो भी 2 सीटों पे, 2 अहम जो सीटें थी। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए जम्मू जिला में तो बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि जम्मू जिला उनका गढ़ माना जाता है। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे में भरोसा जताया है, इसलिए पार्टी को राज्य में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है देश के इतिहास में। आज जम्मू कश्मीर पूरा लद्दाख को मिलाकर मोदी जी के साथ देश की प्रगति में हिस्सा डालना चाहता है। ये जो रिजल्ट्स वहां पर आए हैं ये उसके सूचक हैं कि जम्मू कश्मीर भी मोदी जी के साथ मिलकर आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहता है, और ये वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वहाँ पे हमारे नेताओं की मेहनत है जो आज ये रंग वहाँ दिखा है। जिस तरह के नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं उसे लेकर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता अरविंद जी ने। जो जम्मू कश्मीर की बात करें उसमें जो बीजेपी का जो प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है, जो पहले की तुलना में अगर देखें, इसमें मोदी जी के अलावा भी संगठन और बाकी क्या मुद्दे क्या है। सुशासन और विकास के नाम पर हमने ये चुनाव लड़ा। बहुत लोगों ने प्रयास करने का किया किसको वैली और जम्मू में अलग अलग चुनाव कर दिया जाए, धारा 370 की बात करने की बात की, 10 और मुद्दे
लेकिन हमने अपना फोकस रखा तो सिर्फ सुशासन और विकास, जम्मू कश्मीर का विकास कैसे करेंगे, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेकर जाएंगे, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी। आखिरी सवाल ये है कि जो युवा वोटर जो रहे, आप भी लगातार आप स्टार कैंपेनर रहे, उनकी क्या भागीदारी रही है और क्या उनका रूप है? देश का बहुत तेजी के साथ परिदृश्य बदल रहा है। इस तरह से कहना चाहूंगा कि देश में युवाओं की तादाद बहुत बढ़ रही है। दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भारत है और युवाओं की भूमिका हर चुनाव में और महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। मोदी जी का युवाओं से जुड़ना, मोदी जी की विकास और सुशासन पर बात करना और उसको करके दिखाना, ये अपने आप में और जज्बा विश्वास पैदा करता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बीजेपी का मानना है सुशासन और विकास के नाम पर उसे दोनों ही राज्यों में वोट हासिल हुए हैं और जैसा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, झारखंड की भी तस्वीर एक तरह से साफ है। यहां बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में क्लियर मैंडेट किसी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तस्वीर, क्या रणनीति अलग अलग पार्टियों की और क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं, लगातार इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं वर्डिक्ट।